السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز HD۔ میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نئے سال کی آمد پر ملک بھر میں بھرپور جشن منایا گیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ منچلوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ لوگوں نے نئے سال کی خوشیوں کو بھرپور انجوائے کیا۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی، بحریہ ٹاؤن میں آتش بازی کی گئی۔ دیگر مقامات پر بھی آسمان رنگوں سے نہا گیا۔ دنیا نیوز کی ٹیم کی طرف سے اہل وطن کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ نئے سال کا جشن کس طرح سے منایا گیا، آپ کو بھی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ مناظر آپ نے دیکھے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ عدالت کے حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکے۔ معاملہ ایک بار پھر عدالت پہنچ گیا۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کروانے کے عدالتی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تو تحریک انصاف نے الیکشن نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد عمران رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ سنا دیا۔ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے سنایا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ لوکل باڈی سسٹم یقینی بنانا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئینی دفعات سے فرار ممکن ہے، نہ کوئی رعایت دی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کا اعلان کر چکا تھا، لیکن پولنگ سے 12 دن پہلے یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے کی کوئی ٹھوس وجہ بتائی گئی، نہ حکومت کا دو ٹوک موقف آیا۔ واضح جواب سامنے نہ آنے پر یہی سمجھا گیا کہ حکومت کے پاس بتانے کی کوئی وجہ نہیں۔ یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے کا نوٹیفیکیشن آبادی کے غیر تصدیق شدہ اعداد و شمار پر جاری کیا گیا۔ وضاحت موجود نہیں کہ نئی مردم شماری نہیں ہوئی تو آبادی بڑھنے کا اندازہ کیسے لگایا گیا۔ وفاقی حکومت کا کنڈکٹ قانون سے متصادم دکھائی دیتا ہے۔ وفاقی یا صوبائی حکومت کا اتھارٹی سے تجاوز کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بے اختیار کرنا آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حکومتوں کے ایسے اقدامات عدالتوں سے کل عدم قرار دیے جانے کے لائق ہیں۔ عدالت آئین کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ادارہ جاتی تقاضوں کے تحفظ کی پابند ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پھر ثابت کر دیا یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے حامیوں کی بی ٹیم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عوام سے خوفزدہ PDM تمام انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ ووٹ کا حق بنیادی جمہوری اصول ہے اور PTI اس پر کاربند ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا یہ امپورٹڈ حکومت کی بی ٹیم ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے کہا ہے جھوٹ اور نفرت کی سیاست نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی 15 جنوری کو ہوں گے۔ شہر کا میئر جیالہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلدیاتی امیدواروں سے خطاب کر رہے تھے۔ کس طریقے سے عمران نے پاکستان کو دیوالیہ بنایا، ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ میں دھکیل دیا اور یہ معاشی بحران پیدا کیا جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری کی صورت میں آج بھی عام آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے۔ وہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے۔ اس نے تو دہشت گردی کو واپس امپورٹ کر دیا۔ اپنا ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے۔ ہمارا جو بھی دہشت گردی کا کامیابیاں ہیں اس کو دھچکا دیا جائے۔
जो बड़ा मुश्किल से अमन कायम किया था इस मुल्क में, उसको खतरा में धकेल दिया जाए और उस सिलेक्टेड से हिसाब ना लिया जाए। पहले हम शिकायत करते थे हमसे इलेक्शन का मौका छीना जा रहा है, तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि आप हर साजिश को नाकाम करेंगे और 15 जनवरी को शहर कराची में इलेक्शन होगा। पूरा कराची तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि कौन जीते कौन हारे, जो भी जीतते हैं हम उनको कबूल करेंगे। जो कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो जो काम हम करके दिखाएंगे वो हमसे पहले कोई और नहीं कर सका। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है इतने कम वक्त में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा चंद घंटे में सिर्फ झुर्रू इलेक्शन हो सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ बोले इलेक्शन के लिए कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होना लाजमी है। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई से पंजाब और केपी में बल्दियाती इंतखाबात न कराने का जवाब मांग लिया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, कम वक्त में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून भी अपने मौकिफ के साथ मैदान में आ गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन ना कराने वाले इमरान खान चंद घंटे में इलेक्शन चाहते हैं। जाली, सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि चंद घंटे में इलेक्शन करा दे? चंद घंटे में शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ झरलू इलेक्शन हो सकता है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होना लाजमी है। अदालतों में कानूनी मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस्लामाबाद के शहरियों को वोट के हक से महरूम नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले अदालती फैसले का एहतराम है मगर इंतजामी उमूर को एक रात में मुकम्मल नहीं किया जा सकता। एक दिन में अमली तौर पर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। अदालत का फैसला हमारी सार आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतजामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि तोशाखाना का चोर और फॉरेन एजेंट इलेक्शन से भाग रहा है। इमरान खान ने 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराने का वादा किया था मगर वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? पीटीआई इसका जवाब दे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेगी? जब भी इंतखाबात होंगे वो 13 पार्टियों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की तौहीन की, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो वो फैसला करे और इनको फारिग करना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि मईशत की तबाही की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने का भयानक खेल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि इस्लामाबाद में इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत ने 10 माह में अपने केसेस खत्म करके गरीब से रोटी का नवाला छीन लिया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी पीडीएम क़यादत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेगी? आप इलेक्शन से कब तक भागेंगे? मतलब कब तक दौड़ेंगे? इस वक्त जो सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एक कदम उठाने की वजह से आप हालात बेहतर कर सकते हैं। वजीर सेहत का कहना था कि आवाम को गैस और बिजली मिले या ना मिले बिल जरूर आ रहे हैं, जबकि सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को है।
PTI रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं कराया गया। वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। फारूक हबीब फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोकल बॉडीज के इंतखाबात करवाना ये पाकिस्तान की आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये आइनी जिम्मेदारी है। आज उस आइनी जिम्मेदारी से पूरा करने से इलेक्शन कमीशन ने रूगर्दानी की है और हुक्म अदुली की है। और इलेक्शन कमीशन के साथ आपके इल्म में कि वफाकी हुकूमत का जो गठजोड़ है वो इससे वाज़े गठजोड़ और क्या होगा जो आज खुल के सामने आ गया है। यानी कि आप 31 दिसंबर का शेड्यूल अनाउंस करते हैं, एक हफ्ता पहले ये कानून साजी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ना अमले की तैयारी की हुई थी, ना आपने बैलेट पेपर्स छापे हुए थे, ना आपने पोलिंग स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग की हुई थी। वज़ीरे जंगल का कानून आके ये कह देता है कि इस्लामाबाद जो है वो महफूज नहीं है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो फिर आपको तो वजारत के ऊपर होने नहीं चाहिए, आपको तो वजारत से फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। गवर्नर सिंध भी जूता क्लब में शामिल हो गए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पर जूता उछाल दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा नुमाइश चौरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान किसी शख्स ने उनकी तरफ जूता उछाल दिया। इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ताहम इस वाक़े के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी उन रहनुमाओं में शामिल हो गए हैं जिन पर जूता उछाला गया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प में पाक फौज का जवान जाम शहादत नोश कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 118वीं मिडशिपमैन और 26वीं शार्ट सर्विस कमीशन की कमीशनिंग परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बाहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान नेवल एकेडमी पहुंचने पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने तरबियत मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैरीटाइम डोमेन मुसलसल बदल रही है। अब सिर्फ वही बहरी अफवाज गालिब होंगी जो पेशा वाराना महारत और जंग के जदीद रुझानात से हमांग होंगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। लेफ्टिनेंट काशिफ अब्दुल कय्यूम को कायदे आजम गोल्ड मेडल, जबकि मिडशिपमैन नौफेल मलक को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 30,000 से ज़ायद अफराद तहरीरी इम्तिहान देने पहुंच गए। 1667 खाली असामियों पर भर्ती के लिए मुल्क भर से आए मर्द व ख़वातीन ने इम्तिहान दिया। तहरीरी इम्तिहान इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। इम्तिहान के इनेकाद के लिए पुलिस की बड़ी नफरी तैनात की गई। ये भर्ती गुज़श्ता 5 साल से दरपेश एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। हुकाम के मुताबिक इम्तिहानात के तमाम मराहिल के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। IG इस्लामाबाद ने तमाम इंतजामी अफसरों को जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करने पर शाबाश दी है। भर्ती के लिए उम्मीदवार मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि 1 से 15 जनवरी तक पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल के नर्ख में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ये फैसला मौसम की शिद्दत को मलहूज रखते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। मौसम को सामने रखते हुए और वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज़ है वो जो अपनी जो लेवी है इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्जॉर्ब करे, इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। 227 रुपये 80 पैसे डीजल और 214 रुपये 80 पैसे पेट्रोल की कीमत फैसला किया गया कि वो भी बरकरार रहेंगी और उनमें भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 तक
जो मौजूदा कीमतें हैं डीजल की 227 रुपये 80 पैसे, पेट्रोल की 214 रुपये 80 पैसे, मिट्टी के केरोसिन ऑयल की मिट्टी के तेल की 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की 169 रुपये, ये कीमतें बरकरार रहेंगी और इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर का चैलेंज, हुकूमत ने IMF पैकेज बहाल कराने के लिए बड़े इक़दामात का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक IMF पैकेज के मामले पर पाकिस्तान, अमरीका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल करेगा। इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच रिपोर्ट करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, IMF पैकेज की बहाली का मिशन, हुकूमत का बड़े इक़दामात का फैसला, IMF प्रोग्राम में पेशरफ्त जरूरी, पाकिस्तान का सफारतकारी के जरिए अमरीका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल करने का फैसला। दूसरी तरफ IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए टैक्स में इजाफा, फ्लड लेवी, बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए नर्म रवैया अपनाएगा। आइंदा 10 रोज में ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब तक आ जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने चंद रोज कबल IMF को आंखें मगर बात ना बन सकी। दूसरी तरफ दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज उसी वक्त देंगे जब पाकिस्तान IMF के डिसिप्लिन में रहेगा। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी। दोस्त ममालिक से कर्ज न मिलने की सूरत में हल सिर्फ एक कि IMF प्रोग्राम बहाल हो, बसूरत दीगर मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। महंगाई हर दौर का मसला, कभी इतवार बाजार तो कभी रमज़ान बाजार, कभी सहूलत बाजार बनाने के ऐलान किए जाते हैं। पंजाब में सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाई गई, हर ज़िला और तहसील में बाजार लगाने का ऐलान हुआ, मगर आज तक सहूलत बाजार गैर फाल हैं। फैसलाबाद से मियां अंजुम रिपोर्ट करेंगे। गरीबों को रिलीफ हर जमात का दावा, हुकूमत मिलने पर मसनूई इक़दामात, कभी इतवार बाजार का झांसा तो कभी कम कीमत रमज़ान बाजार की बाजीगरी दिखाई गई। 2021 में बुज़दार हुकूमत ने मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को नया रूप दिया, सहूलत बाजार पार्टी कायम की। सूबे में 400 सहूलत बाजारों पर सारा साल कंट्रोल रेट पर अशिया की फराहमी का ऐलान हुआ। किसानों को अपनी पैदावार बराह रास्त बाजार में बेचने का ख्वाब दिखाया गया। सहूलत बाजार बने, बुनियादी जरूरत की चंद अशिया के स्टॉल लगे, फिर सहूलत बाजार गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए और अथॉरिटी भी कहीं खो गई। अवाम आज भी कंट्रोल रेट पर अशिया जरूरिया के लिए मारे मारे फिरते हैं। घर रोटी नहीं पकी है, मैं उस तरह आटे के पीछे फिर रहा हूँ यहाँ आके तो जब घंटा यहाँ खड़ा हो जाओ, वहाँ जाओ तो उधर रोटी खाने बैठ जाते हैं। उसको मिनता तरले करके तो उठा के लेकर आया हूँ। ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई है। ठीक है, पहले था दाल, चीनी, घी वगैरह हमें सस्ते रेट में मिल जाता था। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, लाइनों में लग के हमें आटा लेना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर ने दावा करते हुए कहा कि आम मार्केटों में रेट कंट्रोल होने के बाद सहूलत बाजार बंद कर दिए गए, जबकि सस्ते आटे की सप्लाई दी जा रही है। ये जो सहूलत बाजार पंजाब के अंदर लगे थे, जिस टाइम पे चीनी का शुगर क्राइसिस आया हुआ था, आटा क्राइसिस था, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को फैसिलिटेशन के लिए और एक सब्सिडी के निज़ाम के तहत खसूसी तौर पर बाजार लगवाए थे। अब चूँकि वो क्राइसिस सिचुएशन ख़त्म हो गई तो अब उस तरीके से तो वो बाजार फंक्शनल नहीं है। शहरी कहते हैं जब भी सियासी जरूरत हो तो सस्ते बाजारों का ड्रामा खड़ा किया जाता है और फिर हालात सियासतदानों के काबू में हो तो सस्ते बाजार और आवाम की फिक्र भी खत्म हो जाती है। सहूलत बाजारों में वैरानियों के डेरे हैं तो आम मार्केट में सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट संजीदा नहीं। शहरी अशिया जरूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। 2022 बिजली सार्फिन के लिए भी मुश्किल तरीन साल रहा। एक साल के दौरान बिजली के नरखों में 300% तक का इजाफा हुआ और बिजली की फी यूनिट कीमत 32 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद से जीशान यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। साल 2022 बिजली सार्फिन के लिए भी भारी रहा। बुनियादी टैरिफ में भी 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट तक का बड़ा इजाफा। एक साल के दौरान बिजली के नरखों में 300% तक इजाफा। बिजली की कम से कम फी यूनिट कीमत 17 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 32 रुपए फी यूनिट तक जा पहुंची। साल के आगाज पर ही 13 जनवरी को हुकूमत ने बिजली के नरखों में 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट इजाफा करके सारिफीन को 440 वोट का झटका दिया। इसके बाद हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट और सहमाई एडजस्टमेंट के नाम पर अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाल लिए गए। रवां साल हुकूमत ने सारिफीन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए जबकि सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में 140 अरब रुपए वसूल किए गए। सारिफीन का कहना है
कि अब तो बिजली के बिल ही पूरे नहीं होते। हुकूमत गरीब आवाम पर कुछ रहम करे। जो गरीब बंदा है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। 20-25 हज़ार में वो बिजली का जो बिल है महीने का वही पे कर देता है। बाकी जो अखराजात हैं घर के वो तो बहुत मुश्किल से पूरे करता है। बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि न पूछें। इस सूरत हाल में हुक्काम का कहना है कि अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए ग्रीन एनर्जी को आम किया जाएगा। सोलर में भी एक बहुत मेजर पुश हम कर रहे हैं और वो जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमें 10,000 मेगावाट सोलर पर लगाने हैं और वो तवानाई होगी जो महंगी तवानाई को रिप्लेस करेगी। जनवरी में पहले 600 मेगावाट की जो बिडिंग है यानी बोली है वो हो जाएगी। रवां बरस अप्रैल में करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील से नेशनल ग्रिड में 720 मेगावाट बिजली शामिल हुई तो दूसरी जानिब नीलम जहलम प्रोजेक्ट की टनल में दरार पड़ने से 969 मेगावाट बिजली का मंसूबा कई माह से बंद पड़ा है। यूं रवां साल मौसमी गर्मा के दौरान मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4 से 6,000 मेगावाट के दरमियान रहा, जिसके बायस शहरियों को 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना रहा। बिजली के नरखों में इजाफे के साथ रवां साल लैंड लॉसेस भी 37% तक रहे और इसका बोझ भी आम सारिफिन को बर्दाश्त करना पड़ा। तवानाई माहिरीन का कहना है कि मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार के लिए शमसी तवानाई और पन बिजली समेत तवानाई के दीगर मुतबादिल ज़रायों के तवील मुद्दती मंसूबों की ज़रूरत है। बसूरत दीगर महंगी तवानाई आने वाले बरसों में पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात मुरतब करेगी। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ ज़ीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। 2022 लाहौर में तरक्याती मंसूबों की वजह से कुछ अच्छा न रहा। सियासी उथल पुथल की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर होते रहे। बुज़दार दौर के 2 मंसूबे मुकम्मल, 2 अधूरे रह गए। शहबाज हुकूमत के 4 मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट करेंगे। 2022 में सियासी उतार चढ़ाव ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर असर डाला। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की रुखसती के साथ इनके मंसूबों को ब्रेक लगी। हमजा शहबाज के मुख्तसर दौर के मंसूबे भी अधूरे रह गए। परवेज़ इलाही ने तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सियासी भूचाल फिर आड़े आने लगा। इससे पहले शहबाज शरीफ ने जो मंसूबे शुरू किए वो भी सियासी तब्दीली की नजर हुए। बुज़दार हुकूमत के 2 बड़े मंसूबे शेरांवाला फ्लाईओवर और शाहकाम फ्लाईओवर मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिए गए, लेकिन गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज के मंसूबों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। तकमील के लिए अब भी 4 माह का वक्त दरकार है। सगियां रोड तुसी मंसूबा डेडलाइन गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हुआ। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की साइट पर एक भी अपार्टमेंट तमीर न हो सका। रवां साल 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए। बेगम कोट से सगियां पैकेज 3 और समनाबाद मोड़ पर अंडरपास की तमीर जारी है। मजीद 3 मंसूबों पर काम शुरू होने को है। मंसूबों में शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट, बंद रोड तुसी मंसूबा और अकबर चौक रीमॉडलिंग का मंसूबा शामिल है। तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार और दीगर ज़ेरे तामीर इल्तवा मंसूबे अवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। जल्द अज जल्द इस मंसूबे को पूरा किया जाए। एक तो टाइम की बचत है, दूसरा पैसे की बचत है। लोगों के यहाँ पे जो भी आते हैं गले ख़राब और बड़ा बुरा हाल होता है यहाँ पे। तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पे आधा पौना घंटा जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। शहर के 9 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और 1 मोरिया पुल तुसी मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। साल 2022 के इख्तिताम और नए साल के आगाज़ पर इस चीज़ की उम्मीद लगाई जा सकती है कि नया साल मुल्क में बेहतरी और मसाइल से छुटकारों का साल होगा। शहर लाहौर के अधूरे तरक्याती मंसूबे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए साल में इनको मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, दुनिया न्यूज़, लाहौर। शोबा खेल से खबर है कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी का कहना है कि 192 खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट समेत डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजन और एसोसिएशंस के क्रिकेट को बहाल कर दिया। रमीज़ राजा के दौर में शुरू होने वाली पाकिस्तान जूनियर लीग को ख़त्म कर दिया गया है। वो लाहौर में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खुशखबरी ये है कि वो 191-92 जो हमारे सेंट्रली कंट्रैक्टेड प्लेयर्स थे, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खेल रहे थे, ये सब के प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिटेन कर दिए गए हैं और सबको अपनी मंथली सैलरीज मिलेंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। पुराना जो स्ट्रक्चर था, एसोसिएशंस, क्लब्स, एसोसिएशंस, रीजन्स वगैरह सारा रिस्टोर हो गया। उसको फॉर्मली हमने कहा रिस्टोर हो गया, डिपार्टमेंट्स रिस्टोर हो गई हैं और पूरा प्लान बन रहा है। शाहिद अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया गया और हारून रशीद साहब के साथ। वो आपको पता है इस वक्त कराची में पिच का मुआयना ले रहे हैं। आई एम इन नेगोशिएशन विद all the senior people.
कि ये सैलरीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पब्लिक का भी ये डिमांड है, तो इस पर कोई सलूशन ढूंढी जाए। हमारी तरफ से जो हमारी हुकूमत कहेगी ऑन दीज इश्यूज़, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकता, ना वो कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो जो हमारी हुकूमत हमें कहेगी वो हम करेंगे। पीसीसी अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद आफरीदी कहते हैं वन मैन शो नहीं, तमाम फैसले सबकी मुशावरत से करते हैं, वो किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहते। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी हैं, डेड पिचेस पर कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। कराची से इबादुल्ला खान रिपोर्ट करेंगे। बूम बूम का दबंग अंदाज। दूसरे टेस्ट मैच की पिच की तैयारी का जायजा लेने नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। क्यूरेटर्स को तेज और बाउंस से विकेट बनाने की हिदायत। मीडिया से बात करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि दूसरे टेस्ट मैच में ऐसी पिच बनाएंगे जिस पर फैसला हो। डेड पिचेस पर कभी भी टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 नहीं बन सकते। तमाम फैसले मुशावरत से करता हूँ। हम फ्यूचर को देखते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें एक अच्छी पिच पे खेलना चाहिए, एक बाउंसी अच्छा ट्रैक जिस पे बॉलर्स भी इंजॉय करें और बैट्समैन अपनी बैटिंग को भी इंजॉय करें। फिर प्लेयर्स के साथ जब मैंने इंडिविजुअल 1-to-1 बात करना शुरू की तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई जो कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक लाला का कहना था कि हमको बाबर आजम का कंधा बनना चाहिए, कप्तान बनाने या हटाने का इख्तियार चेयरमैन बोर्ड के पास है। बाबर आजम आप लोगों की जो टीम का, हमारी टीम का बैकबोन है, माशाल्लाह से टॉप परफॉर्मर है। कल मुझे अच्छा लगा बाबर आजम का डिसीजन जब उसने बैटिंग दी, चैलेंज दिया कि आओ न्यूजीलैंड की टीम को, तो ये मुझे बाबर की वो चैलेंज को अच्छा लगा मुझे उसका। अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया हुआ है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसकी मानने की हिम्मत है मेरे अंदर, इतनी ताकत है कि मैं फरिश्ता तो हूँ नहीं, इंसान हूँ, गलतियाँ हर एक से होती हैं। रमीज राजा की तनकीद पर कहा कि किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता, तवील मुद्दत के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। कप्तान बाबर आजम कराची में ज़ेर इलाज नन्हे परस्तार से मिलने अस्पताल पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इस दौरान स्टार बल्लेबाज ने मोहम्मद रिजवान से भी वीडियो कॉल पर बात करा दी, जिससे बच्चे की खुशी दीदनी थी। मौसम का हवाल कुछ यूँ है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके मुसलसल धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला अभी जारी रहेगा। पोठोहार रीजन में कोहरा पड़ने का इम्कान है। सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सोर में पारा -10, कालाम और गोप्स में -8 रिकॉर्ड किया गया। कलात में -7, ज़ियारत में -6, हुंजा, मालम जब्बा और पारा चिनार में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।